Hello students, welcome back to our online classes. In previous video we have completed our exercise 7.1. Now in this video we will continue with the exercise 7.2. The topic is fraction on number line. Now some fractions are given and we have to locate that fraction on number line. See, before that in 7.1 we have write the fraction of the given figure, whatever it is. See, it is the one whole, one complete. ये जो circle है एक complete है. After that we divide this circle into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमने क्या किया, एक पूरे को, one complete whole को हमने 8 parts में divide किया. Okay. After that, out of that 8 we shaded 2. हमने क्या किया, उन 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को शेड किया. सो द फ्रैक्शन कम्स आउट 2/8 मीन्स 8 हिस्सों में से आउट ऑफ 8 पार्ट्स वी हैव शेडेड 2 पार्ट्स. एक होल को हमने कितनों में डिवाइड किया, 8 इक्वल पार्ट्स में, और उन 8 इक्वल पार्ट्स में से 2 को हमने शेड किया. नाउ दिस फ्रैक्शन 2/8, if we have to locate this fraction on number line, how to do that? See, here I draw a number line 0, 1. 0 से लेके 1 तक. 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है. इस तरफ क्या आएगा, -1, -2, -3 like that. 0 to 1. Now इस होल को complete 1, 0 से लेके 1 को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, आई हैव टू डिवाइड दिस कंप्लीट होल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 8. ठीक है, मुझे क्या करना है, 0 से लेके 1 तक जो मेरे पास फुल 1 आया उसको मुझे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मैंने क्या किया, इस कंप्लीट होल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. नाउ आई हैव टू लोकेट दिस 2/8. सो 0 यहाँ पे आ गया, 1 एंड 2. इट मीन्स 0.1, 0.2, 0.3 like this. So not 0.1. If it is 10, then it becomes 0.1. So it is the parts. First part, second part, third part, fourth part, fifth part, sixth part, seventh part, and 8 part. Means this one is the 1/8 part of the whole. This is the 2/8. ये क्या है, 2/8. मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में ये उसका 2/8 हुआ. जैसे हमने ये होल सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो शेडेड पार्ट है ये इसके 2/8 पार्ट है, वैसे ही यहां से लेके यहां तक जो होगा इसका कितना पार्ट होगा, 2/8. मतलब आउट ऑफ 8 दिस इज द सेकेंड पार्ट. अंडरस्टूड. हमने कंप्लीट होल को 0 से लेके 1 एक कंप्लीट होल है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस इज द 1/8 पार्ट, दिस इज द 2/8 पार्ट, 3/8 पार्ट, 4/8 पार्ट, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. 8/8 means 1, so it is the complete 1. Okay, understood? So now we will solve our exercise 7.2. Now here is your first question of exercise 7.2. Draw number line and locate the fraction. Now here fractions are given and we have to locate these fraction on number line. So the first one is 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. So fractions are 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. Means अ कंप्लीट होल, मतलब एक को 0 से लेके 1 तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में. डिनोमिनेटर इज 4. हियर इट इज 2 बट वी कैन ऑल्सो मेक इट 4. 2 2s are 4. अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट बिकम 2/4. सो 1/2 और 2/4 इज द सेम थिंग. सो 0, 1, 2 ऐसे एक नंबर लाइन है. सो वी डिवाइड दिस 0 to 1. एक पूरे होल को हमने किस में डिवाइड कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स में. 1, 2, 3 and 4. 4/4 means 1. So 1/4. 1/4. First is 1/4. A
2 by 4. 2 by 4 means 1 by 2. B, it is 3 by 4 and this is 4 by 4 means 1. Okay. Now B, 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8, 7 by 8. Now how many parts we have to divide? In how many parts? Yes, we have to divide one complete whole into 8 equal parts. So 0 to 1, 1 to 2. So हमें 0 से 1, एक पूरे complete 1 को हमें कितने में divide करना है? 8 equal parts में. So here I have divided it into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1 by 8. This is the 1 by 8. 2 by 8. 3 by 8. Then 7 by 8. It is 4 by 8. It is 5 by 8. It is 6. Then it is 7 by 8. So A, B, C and D. First one is 1 by 8. Second 2 by 8. 3 by 8. And after that 7th part is 7 by 8. Okay. Now the C one. 2 by 5, 3 by 5, 8 by 5, 4 by 5. Now, yes, we have to divide the one complete whole into 5 equal parts. But see the difference. 8 by 5. अभी 5 parts हैं. हमारे पास तो पूरे 1 के कितने पार्ट किए हमने इक्वल? 5 parts. बट यहाँ तो 8 parts पूछ रहे हैं. So क्या हो जाएगा? वो 1 से ज्यादा हो जाएगा. मतलब एक को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट अगर उसके हमें 8 पार्ट बनाने हैं 5 के, तो हमें क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा. वो 1 और 2 के बीच में आएगा. सो फर्स्ट 0 से 1 को हमने 0 से लेके 1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. 1, 2, 3, 4, 5. आफ्टर दैट 1 to 2 को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में. 1, 2, 3, 4, 5. सी इट इज 8 by 5. अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 1 जा 5, 3 पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30. मीन्स इट इज मोर देन 1. 1.6 मीन्स 2 से कम है और 1 से ज्यादा है. तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा. अंडरस्टूड? इट विल कम बिटवीन 1 and 2. सो till here it is 5 parts, then it is 6, then it is 7 and 8. So how to locate? 1 हम drop करेंगे because 2 by 5. Second one is 2 by 5. Then third one 3 by 5. Fourth one 4 by 5. Then 8 by 5 means we have to move after 1. 1 के आगे भी हमने 1 से लेके 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5 इक्वल पार्ट्स में. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ तक 1 तक आगे 5, then 6, 7, 8 by 5. So this is all about your question number 1. Okay, now question number 2. Express as mixed fraction. Now what is mixed fraction? So mixed fraction is the combination of whole and a part. जैसे ये है 6 इंटीजर 2 by 3. 6 के होल है, मतलब 6 एक पूरा पार्ट है 6, और होल एंड पार्ट 2 by 3. मतलब आगे जो है 3 पार्ट्स के 2, 3 इक्वल पार्ट्स में से 2. तो 6 इंटीजर 2 by 3. इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो हाउ टू फाइंड इट आउट? 20 by 3 हमने क्या किया? फिर इसको डिवाइड कर लिया. 20 वी डिवाइड 20 by 3. 3 6 18, 2. रिमाइंडर इज 2. व्हाट इज द रिमाइंडर? यस, रिमाइंडर इज 2 and quotient 6. डिविजर 3. अंडरस्टूड? डिविजर क्या है? 3, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. क्वोशिएंट कितना आया? 6 और रिमाइंडर 3. सो देयरफॉर 20 upon 3 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पे क्वोशिएंट लिखते हैं, देन रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविजर. डिविजर एज इट इज रहता है. जैसे यहाँ पे डिविजर 3 है, यहाँ पे भी एज इट इज रहेगा. होल किसको बोलते हैं? हम क्वोशिएंट को होल बना देंगे. 6 इंटीजर 2 by 3. क्वोशिएंट इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिविजर. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नाउ बी 11 by 5. सेम प्रोसीजर. 2 is the quotient, 1 is the remainder and 5 is the divisor. So quotient integer remainder upon divisor. Quotient integer remainder upon divisor. 2 is the, what is 2? Quotient. What is 1?
रिमाइंडर एंड डिविजर एज इट इज, ये यहाँ हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है। यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाता है, क्वोशिएंट इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिविजर। सेम विद दिस 7 2 14, 3 रिमाइंडर, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 3 एंड डिविजर एज इट इज 7. Understood? Now the question number 3, it is expressed as improper fraction. Now mixed fractions are given and we have to convert it into improper fraction. Now what is improper fraction? So a fraction in which the numerator is greater than the denominator. जहाँ पे जो है न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब जो नीचे वाला नंबर है जिससे हम डिवाइड करें, जो डिविजर है वो डिविडेंड से बड़ा होगा, सॉरी डिविडेंड जो है वो डिविजर से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। अंडरस्टूड? सी हियर इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन 7 इंटीजर 3/4। सो हाउ टू कन्वर्ट, हम क्या करते हैं 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। 4 तो एज इट इज रहेगा, डिविजर हमेशा एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, 7 को क्या किया हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 एज इट इज रहेगा, आंसर विल बी 31 डिवाइडेड बाई 4। अगेन 5 इंटीजर 6/7, सो वी विल मल्टीप्लाई 5 multiplied by 7 and plus 6 divided by 7. The answer will be 41 upon 7. Again 8 multiplied by 9 plus 4 divided by 9. So again 8 9 is 72 plus 4 divided by 9, it will be 76 divided by 9. Okay, so this is all about your question number 3. Now exercise 7.3. Question number 1. Write the fractions. Are all these fractions equivalent? Now what is the meaning of equivalent? Equivalent means, see here it is 1, तो अगला भी 1 होना चाहिए, 2 है तो सामने वाला भी 2 होना चाहिए। See, one circle is here and it is divided into 2 equal parts. Out of these 2 equal parts, one is shaded and one is unshaded. So the fraction of this figure is 1/2. B. This circle is divided into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. How many equal parts? 4 equal parts. And out of that 4 equal parts, 2 are shaded. 2 parts are shaded. So जितने equal parts हैं उसको denominator में लिखेंगे. Out of that, how many are shaded? 2 are shaded. So we write numerator as 2. So इसको simplest form में लिखेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4. It is equal to 1/2. मतलब पूरे सर्कल का हाफ शेडेड है, हाफ शेडेड नहीं है। 4 में से 2 पार्ट शेडेड है, मीन्स व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल इज शेडेड एंड हाफ पार्ट इज अनशेडेड। सी द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6. So there are 6 equal parts of this circle and out of that 6, 3 are shaded. So the fraction is 3/6. 3 1s are 3, 3 2s are 6. The simplest form is 1/2. D. How many total parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. So total parts are 8 and out of that 8 parts 4 are shaded. So 4 parts are shaded. 4 1s are 4, 4 2s are 8. This is the simplest form. So now we observe that all the fraction 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, all the fractions are 1/2. Therefore they are equivalent. मतलब ये सब बराबर है. Now the next question. Replace the box by the correct number. Now boxes are given and we have to replace that boxes by the correct number. See, 2/7 is equivalent to 8/dash. अभी हमें क्या करना है, देखिए हमने पहले क्या किया था, स्मॉलेस्ट फॉर्म में निकाला था और इक्विवेलेंट किया था। अभी हमें इसको इक्विवेलेंट करना है। 2/7, 2 को हमने 8 बनाया, मतलब अभी हम 2 का टेबल बोलेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। मतलब हमने वी हैव टू मल्टीप्लाई 2/4 टू गेट 8। तो हमने क्या किया,
2 को 4 से मल्टीप्लाई किया उसको 8 बनाने के लिए, इक्विवेलेंट बनाने के लिए। ओके, अगर हम न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अगर 2 4 जा 8 तो 7 4 जा 28, सो द करेक्ट नंबर इज 28। अगर 2 का 8 बन रहा है तो 7 का क्या बन जाएगा, 28, बिकॉज 2 4 जा 8, मतलब हमें 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है 2 को। तो अगर न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद द सेम नंबर, दैट इज 4। 5 by 8, if we make 5 10, 5 2s are 10, then 8 2s are 16, so the number in box is 16। 3 by 5, 5 को हमने क्या किया है, 20 के इक्विवेलेंट, तो 5 4s are 20 means we have to multiply 3 by 4, 3 4s are 12, so answer will be 12 upon 20। अंडरस्टूड? इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब अगर 2 को हमने 8 बनाया, मतलब हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ही वो 8 बना, 2 4s are 8, तो हमें डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन द फ्रैक्शन विल बी इक्विवेलेंट। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 by 5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। मतलब हमारे पास एक फ्रैक्शन है दैट इज 3 by 5 और हमें इसके इक्विवेलेंट दूसरी एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसका क्या डिनोमिनेटर 20 हो, मतलब ये 20 हो। तो हमें पता है हम 5 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, 20 जब तक नहीं आता है। 5 4s are 20, मतलब डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। सो इट बिकम 4 3s are 12, 5 4s are 20। ओके, सेकेंड न्यूमरेटर 9 means we have to make this 3 9. So to make 3 9 we have to multiply 3 by 3, 3 3s are 9. If we multiply this 3 by 3, so we have to multiply this 5 by 3. So 3 3s are 9, 3 5s are 15. So the equivalent fraction having numerator 9 is equal to 9 by 15. Next, denominator 30 means we have to make this 5 30. So 5 6 are 30. Therefore we have to multiply this 3 with 6 2. So 6 3s are 18. 18 by 30. Next 27. Numerator. So to make this 327 we have to multiply this 3 by 9. So 9 3s are 27. Also we have to multiply this 5 with 9. 9 5s are 45. So answer will be 27 upon 45. It means कि हमें अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं तो जो जिस चीज से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं वो द सेम नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 by 48 हैविंग न्यूमरेटर 9। Now see the difference between this question and the previous question. What is the difference? Yes, previous question में क्या था, हमारे पास छोटा नंबर दिया गया था फ्रैक्शन फॉर्म का और हमें बिगर नंबर फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे क्या है, हमें 36 और 48 दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 9। मतलब 36 को हमें 9 बनाना है, मतलब हमें उसको कम करना है। सो व्हाट टू डू, यस हियर वी हैव टू डिवाइड। सो हम देखेंगे ये जो है हम 9 का 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 9 से वी कम टू नो दैट द आंसर विल बी 4। तो हम क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 4 9। अगर हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को तो हमें डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो 48 डिवाइडेड बाय 4, सो आंसर विल बी 9 अपॉन 12। सेम विद द नेक्स्ट वन, डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर हमें 4 दे रखा है, तो हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, वी गेट द आंसर 12। तो हम यहाँ भी 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 12 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 3 by 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक whether the given fractions are equivalent or not. Now see, fractions are given 5 by 9 and 30 by
54. There are many methods, but here I will explain you the two methods. Okay, there are many methods you can find out whether the equations are fractions are equivalent or not, but I'll tell you two method over here. Which one you find easy, you can follow that method. So first one, 5 by 9. 5 by 9. First we take the smallest number, that is 5 by 9. 5 by 9 और 30 by 54 में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? 5 by 9. नाउ मैं क्या ट्राई करूंगी? 5 by 9 को मैं 30 बनाऊंगी. तो कैसे बनाऊंगी? यस, 30 बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. सो 5 6 30. तो मेरा आंसर आ गया 30. आई गेट दिस. अगर मैंने न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है, सो आई हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर विद 6. ओके, तो मुझे नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन क्या करनी पड़ेगी? 6 से. तो मुझे 9 को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 6 से. सो आई मल्टीप्लाई 9 by 6. आई गेट द आंसर 54. दिस विच इज दिस वन. सो when I multiply both the numerator and denominator with 6, I get the same fraction, 30 by 54. Hence, the fractions are equivalent fraction. This is the first method. कैसे करना है? मुझे 5 by 9 जो फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है उसको जो बिगेस्ट नंबर है वो बनाना है. उसके लिए मुझे 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा. मैं 5 का टेबल पढ़ रही हूँ. सो आई कम टू नो दैट 5 6 30. तो मुझे पता चला कि मैंने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया. आई गेट 30. तो अगर मैंने न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो आई मल्टीप्लाई 9 by 6. आई गेट द सेम नंबर विच इज 54. हेंस द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट. नाउ सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड क्या है? ये जो 30 by 54 है, जो बिगेस्ट नंबर है, इसको मैं अगर इससे डिवाइड करती हूँ, सो मेरा जो है सेम आंसर आना चाहिए. जैसे 30 को मैंने 5 से डिवाइड किया, आई गेट 6. मैंने 54 को 9 से डिवाइड किया, आई गेट 6. सो बोथ द नंबर्स आर सेम. हेंस दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अभी इन दोनों मेथड से, या तो मल्टीप्लाई से करो या डिवीजन से करो, जो भी मेथड आपको इजी लगता है, यू कैन फॉलो दैट मेथड. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6A part. Next one, B part, 3 by 10 and 12 by 50. Now see, if I want to make 3 12, I have to multiply 3 by 4 because 3 4s are 12. If I multiply numerator with 4, then I have to multiply denominator with 4 only. So 10 4s are 40. 3 4s are 12, 10 4s are 40, but it is 50 here. So the fractions are not equal. It is 12 by 50 and I get 12 by 40. Hence the fractions are not equivalent. Okay. C1, 7 by 13, 5 by 11. Now you can observe the things that all the numbers are prime number. मतलब इनके कोई ना फैक्टर है. 7 का कोई फैक्टर नहीं होता है. ये प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 is also a prime number. So all the numbers are prime numbers and not equal. 7 is not equal to 5. Therefore the fractions are not equivalent. Okay, मैं इनको कोई से भी मेथड से ट्राई करूंगी सॉल्व करने का, बिकॉज 7 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 के टेबल में 7 नहीं आता है. सो बोथ द नंबर्स आर नॉट इक्वल. ऑल द नंबर्स आर एन प्राइम नंबर. हेंस द इक्विवेलेंट नहीं है ये. 7 by 30 इज नॉट इक्वल टू 5 by 11. Now question number 7. What is it? Reduce the following fractions to the simplest form. Means हमें एक फ्रैक्शन दी गई है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. मतलब हमें सबसे लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा नंबर जिसके फर्दर आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं. सो फर्स्ट देयर आर so many methods to solve this sum. Okay, I will tell you two methods. Which method you find easy, you can follow that method. So first one is 48 divided by 60. Now the first method, हम देखेंगे कि 48 और 60 कौन से टेबल में दोनों आते हैं. सो वी नो दैट 12 के टेबल में 48 भी आता है, 12 के टेबल में 60 भी आता है. 12 4 जा 48, 12 5 जा 60. तो आंसर विल बी 4 by 5. नाउ देखो 4 by 5 इज द सिंपलेस्ट. अभी 4
कि 2/2 फैक्टर बनते 5 1 5, बट वो आपस में कट नहीं होंगे. सो 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 60. द सेकेंड मेथड, हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 48 के फैक्टर्स निकाले. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 28, 2 12 2 ज़ा 12, सॉरी 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ऐसे हमने 60 के फैक्टर्स निकाले. देन राइट डाउन हियर 48 के आगे 48 के फैक्टर, 60 के आगे 60 के फैक्टर. देन कट द कॉमन फैक्टर्स. 1 2 1, 1 2 1. नाउ देयर इज नो मोर 2s. So 3 से 3 कट हुआ. क्या बचा? 2 2 ज़ा 4 and 5 1 ज़ा 5. So the answer will be 4/5. You can follow this method or this method. Which method you find easy, you can follow the method to find out the simplest form of the given fraction. Next is 150 divided by 60. ना हमें पता है ये 10 के टेबल में आएगा. 15 10 एंड 6 10 10 10 कैंसिल हो गया. अगेन 15/6, बट ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है. हमें पता है ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं. 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6. सो आंसर विल बी 5/2. नेक्स्ट 84 डिवाइडेड बाई 98. सो वी नो दैट बोथ द नंबर्स आर in the table of 14. 14 6 ज़ा 84 and 14 7 ज़ा 98. So 14 cut by 14, the answer will be 6/7.